Dear students, we are going to study about the semiconductor materials. First of all, we start from the atomic structure. Bohr has developed a clear picture of atomic structure, and he stated that an atom consists of a nucleus which contains neutrons, which is neutral particles, and protons, which is positively charged particles. The electrons, the negatively charged particles, revolve around the nucleus in different orbits. The nucleus has positive charge which attracts the electrons, and electrons travel in a stable orbit and moves at the right velocity for centrifugal force to balance the attraction of the nucleus. The electrons in each permitted orbit have a certain fixed amount of energy. Larger the radius of orbit, the greater is the energy of electron. Further, he stated that an electron is projected to the higher orbit if some additional energy in the form of heat, light, or other radiations are given to it. Then the atom is said to be in a state of excitation. This state does not last long since the electron soon returns back to the original that is lower orbit. As it falls back, it radiates the acquired energy in the form of heat, light, etc. This is the statement of Bohr model about atomic structure, and this is the pictorial view, and this is nucleus which contains protons and neutrons, and these path is a orbit, and these are electrons moving in a orbit. We can see in this picture also, this is nucleus, this is orbit, and electrons moving in a particular orbit. This orbit is also called shell. Now, atomic number. The atomic number equals the number of protons in the nucleus, which is the same as the number of electrons in an electrically balanced neutral atom. Energy level. What is energy level? In the isolated atomic structure, there are discrete individual energy levels associated with each orbiting electrons. As shown in previous figure, each orbiting electrons has its own energy, and the more the distance the electron from the nucleus, the higher the energy state, and any electron that has left its parent atom has a higher energy state than any electron in the atomic structure. जो इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को लेफ्ट कर जाएगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसके रिस्पेक्ट में जो अपने पेरेंट एटम के साथ अटैच्ड हैं. इसको हम बैंड डायग्राम में इस तरीके से देख सकते हैं. यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस है, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज शेल, and gap is the energy gap, and only a specific energy level can exist for electrons in the atomic structure of an isolated atom. न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, बाकी ये जो ग्रीन ब्लू बैंड है ये दिखा रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों सेल के बीच में जो गैप है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं. जैसे ये देखिए फर्स्ट वाला स्लाइड आपने देखा था, इसमें ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स है और इन ऑर्बिट्स के बीच में गैप है. इस गैप को यहाँ बैंड के फॉर्म में इस तरीके से शो किया है.
तो एक एनर्जी लेवल ये है, न्यूक्लियस है, उसके बाद ये एक एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, और तीसरा एनर्जी लेवल, और उसके बाद की एनर्जी लेवल, और उसके सबसे आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होती है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो बैंड होगा उससे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। तो ये जो सर्कुलर है उसको इसको स्केल में प्लॉट कर लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के फॉर्म में। ये वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी है और इस एक्सिस पे ये बैंड्स हैं। तो इसको सर ये हम बैंड क्या होता है सर? एनर्जी बैंड कहते हैं। बैंड कहते हैं कि रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सर्टेन सेल। एक पर्टिकुलर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को पजेस करेंगे, यानी ऑक्युपाई करेंगे, उस एनर्जी लेवल को हम बैंड कहते हैं। और जो बीच में गैप्स हैं उसको हम एनर्जी गैप्स कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये अपने पेरेंट एटम से, जो न्यूक्लियस है, उससे उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होती है इनकी। और इस हाईएस्ट एनर्जी लेवल की वजह से इनका जो बॉन्डिंग फोर्सेज है, चूंकि दे आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो ये, अब जो वैलेंस बैंड है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं किसी भी मटेरियल की। इनकी क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कितनी एनर्जी है, ये डिफाइन करता है कि वैलेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। तो आपको अभी बताया कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम, उस ऑर्बिट को वैलेंस कहते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अगर हम कोई एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दें, हीट हीट एनर्जी सप्लाई कर दें, तो उसके वजह से वो काफी एनर्जी उनको मिल जाती है, और उस एनर्जी की वजह से दे आर डिपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। वो अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं, यानी वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते, बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, पहले बेसिक शुरू में क्या था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यस उसके सर। इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड एटम था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, दे आर न्यूट्रल। यस लेकिन सर, न्यूट्रल सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे ही आपने हीट एनर्जी सप्लाई करी, उसके वजह से उसके आउटर मोस्ट ले लेते हैं, देन दे बिकम फ्री। अब उनका बॉन्डिंग से कोई रिश्ता नहीं है, दे बिकम फ्री, वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद जिस बैंड में जाते हैं हम उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। और इन सर ये इलेक्ट्रॉन बैंड क्या है सर? कर देते हैं हीट के फॉर्म में। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट इंगेज इन देयर पेरेंट बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग से ये आजाद हो जाते हैं, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इसलिए कि ये कंडक्शन, करंट कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो भी कंडक्शन होता है मटेरियल के अंदर, वो इसी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो आयनाइजेशन की बात चल रही थी। तो जब कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, लूज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस उसके बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन्स उसके कम हो गए, देन इट बिकम आयन। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर पॉजिटिव आयन की तादाद ज्यादा हो गई, पॉजिटिव प्रोटॉन की, तो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, उसको कहेंगे पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन दोनों तरीकों से हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स डिपार्ट करके उसे छोड़ दिए बॉन्ड से और उससे पॉजिटिव आयन बना दिया। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन
कहीं से आ गए, कोई दूसरे एटम से आके मिल गए या दूसरे सेल से आके मिल गए, तो वो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले लिया, तो जितने प्रोटॉन है उसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो वो एटम और नेगेटिवली चार्ज एटम कहलाएगा, यानी उसे नेगेटिव आयन कह सकते हैं। ठीक है। अब इस एनर्जी के जो लेवल्स हैं उसके एतबार से ये बैंड्स पहले भी दिए थे आपको। ये बैंड्स क्या है? ये रेंज ऑफ एनर्जीज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई किए हुए हैं। द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by the electrons of the same orbit in a solid is known as energy band। अब एनर्जी बैंड को जो हमारे मतलब की है वो तीन तरीके की है। एक तो वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कहां से आएगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एनर्जी बैंड होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड की वजह से, कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सटर्नल एनर्जी लेके फ्री हो गए थे अपने पेरेंट एटम से। That electrons are called free electrons, and these free electrons are responsible for the conduction of current, इसलिए इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो इस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी की लेवल बनेगी या एनर्जी की बैंड बनेगी उससे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो आपने देखा था जो गैप्स हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, या उसके और नीचे आ जाइए, दो एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप्स हैं उससे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी का इसलिए कहते हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनकी कोई एनर्जी नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन्स, एनी चार्ज कैरियर्स, इसलिए इन्हें हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो इसमें देखिए इस सर एनर्जी, वैसे नॉर्मली जो सेल होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंट होता है उसे केवल एनर्जी गैप कहते हैं। हाँ एनर्जी गैप कहते हैं। जो सेल के बीच का जो गैप है उससे हम एनर्जी गैप कहते हैं। देखिए इन एनर्जी बैंड्स के बेस पे हम सॉलिड, ये तीन तरह के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। इन मटेरियल को आप इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, इनको और इनकी रेजिस्टिविटी के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं कि हमें दूसरी तरफ लेके जाना है इस उसको, तो इसलिए हम एनर्जी बैंड के बाद गैप के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इन तीनों सॉलिड को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखिए जो इंसुलेटर होगा उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत लार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल पे है। जब ये प्योर पूरा का पूरा पीस लेंगे तो उसके अंदर ये गैप बहुत ज्यादा होगा। तो होगा क्या इंसुलेटर के केस में? क्या होगा कि वैलेंस बैंड यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, वो तो मटेरियल की अपनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके बीच और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके जाएंगे इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। यानी नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन does not left their valence band for conduction band। नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं करेगा कंडक्शन बैंड के लिए, इसलिए इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। एंड नो करंट इज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। आ रही बात समझ में? जैसे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं फिर। इसलिए नहीं जाएगा कि इसका एनर्जी गैप बहुत लार्ज है। ठीक है।
तो मैं कह रहा था कि मटेरियल, जितने मटेरियल्स होंगे इंसुलेटर की, उनकी एनर्जी गैप्स अलग अलग होंगे। जैसे एक इसके केस में देखिए, सेमीकंडक्टर के तीनों के दिए हुए हैं कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। और कंडक्टर के केस में ये होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मिले हुए होते हैं, ओवरलैपिंग होती है। यानी उसके कंडक्शन बैंड में हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो करंट फ्लो करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर के केस में इंसुलेटर के जैसा तो बहुत बड़ा बिग एनर्जी गैप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एनर्जी गैप है। यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ कंडक्टर के केस में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में आपको सफिशिएंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। सर इसका एग्जांपल बताइए सर थोड़ा। स्ट्रक्चर है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। दो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन जनरली जो यूज होते हैं डिवाइसेस को बनाने के लिए, वो सिलिकॉन ही यूज होते हैं 99%। और जर्मेनियम भी है इसका कंटेम्परेरी। तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। इसमें 14 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका 32 है। सिलिकॉन का। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं दोनों का। और इसको हर इसके 4 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट है, इसके दो 4 ऑर्बिट हैं। तो इनमें क्या होगा, ये जितने जितने क्या कह रहे हैं सर, सेमीकंडक्टर को भी तो मतलब कंडक्टर बनाया जा सकता है ना, हीट वगैरह करके। कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कंडक्टर नहीं बनता भाई। कंडक्टर तो अपनी प्रॉपर्टी से बनता है वो। इसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी इंड्यूस कर देते हैं। तो इसमें देखिए ये दो तरीके के हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम के अंदर, वो चौथे वाले ऑर्बिट में है। और इस सब में 4 ही रहेंगे, जितने सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 ही होते हैं। जो बात कह रहा हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इसके, वो किस सेल में है? चौथे सेल में है। ठीक है, ये सर एन शेल में एन। एन नहीं यार, यहाँ एन नहीं हो रहा है, यहाँ तो नंबर आपके सामने है। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा चौथे सेल में है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके चौथे सेल में है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके तीसरे सेल में है। तो जो बॉन्डिंग, जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, वो किस केस में ज्यादा होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सर जिसमें इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्सेज अप्लाई होंगे न्यूक्लियस से, उसमें अट्रैक्शन फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? सर सिलिकॉन पे। जी, सिलिकॉन पे। सिलिकॉन पे। सिलिकॉन। हाँ सिलिकॉन पे लगेगा, इसलिए कि सिलिकॉन थर्ड में है और ये फोर्थ में है। तो यही वजह है कि सिलिकॉन को यूज किया जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे ना, वैसे ही बहुत सारे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस कम रहेंगे। दोनों को कंपेयर करें तो कई गुना ज्यादा जर्मेनियम में फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी एक डिमेरिट हो जाती है कि जब थोड़े से टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं थर्मली इनस्टेबल। तो जनरली 99% केस में इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई सिलिकॉन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसकी वजह यही है कि जो बॉन्डिंग फोर्सेज लग रहे हैं, वो जर्मेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एट हायर एनर्जी लेवल देन दोज इन सिलिकॉन, देयरफॉर रिक्वायर्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द एटम। स्मॉल एनर्जी उसे वहां से एस्केप कर देगा।
तो जर्मेनियम हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन। और सिलिकॉन के बारे में, और सिलिकॉन इसलिए यूज किया जाता है कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है, आपको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सिलिकॉन एटम के, और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। चार और चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब यह है कि 4 दूसरे से लेगा, तो इसमें बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम, जैसे सर कार्बन बनता है, जो बराबर के एटम से शेयर करके बनाते हैं, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है। एटम लिया जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके बराबर में यहां से 2 इसके ले लिए, और 2 इसके ले लिए, और 2 इधर के ले लिए, 2 एक, यानी चारों से अलग अलग 4 एटम से शेयरिंग करके ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ये दूसरे फॉर्म में इस तरह से दिखाया गया है कि सिलिकॉन का ये 4 इसके हैं, और इन चारों से एक एक इसने लिया, तो इसका जाके ऑक्टेट पूरा हुआ। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में बॉन्ड बनते हैं। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसकी एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। आप अगर सारे मटेरियल्स की, सेमीकंडक्टर की जो इतनी यूज है, एप्लीकेशन है हर फील्ड में, इसकी एक वजह ये है कि इसका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। अब इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो पूरे एटम का एक रेगुलर स्ट्रक्चर बन के आता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये पूरे एटम का इस तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर बन के आता है। कौन हो, सब में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। इसकी 4 अपने हैं और 4 अलग अलग एटम से लेके ये बॉन्डिंग करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट सिलिकॉन एटम है, ये फिर अपने 3 और लेंगे और ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। इस तरह ये एक सिलसिला चलता रहेगा। इस फॉर्म में जो बन के आता है, इसको हम लैटिस कहते हैं या रेगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं क्रिस्टल का। तो एक जो अपनी इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, सिलिकॉन की या जर्मेनियम की या किसी भी सेमीकंडक्टर की, वो इसकी खास बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर रेगुलर होता है। तो इसमें देखिए कंडक्शन कैसे हो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ओर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो प्योरेस्ट फॉर्म में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम जो अचीव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल। Intrinsic semiconductor are those semiconductors that have been carefully refined to reduce the impurities to a very low level, essentially as pure as can be made available through modern technology. जो प्योरेस्ट फॉर्म में हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्शन होता है, इसको समझना है। तो देखिए, इसमें 2 केस लेते हैं। एक केस ये है कि 0 टेम्परेचर पे लिया। तो देखिए, इसका टेम्परेचर को यहाँ केल्विन में लिया है। 0 टेम्परेचर का मतलब यह है कि -273.15 डिग्री। इस टेम्परेचर पे अगर हम लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को, कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल को? इंट्रिंसिक सर। इंट्रिंसिक मटेरियल। देखिए, इसमें जब 0 टेम्परेचर में लेते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस है, दिख रहा है? इसको बैंड डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट बैंड है। फर्स्ट बैंड में आपको पता है 2, और दूसरा में 8, और तीसरा में 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होगा ना भाई? 2, 8 और 4।
तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल में, वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी गैप है और कंडक्शन बैंड है। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को जीरो टेम्परेचर पे रखते हैं, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सीन होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने सेल के अंदर, अपने अपने बैंड के अंदर अवेलेबल होंगे और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। यस ये सर। देखिए, ये स्ट्रक्चर है और 0 टेम्परेचर पे 0 केल्विन की बात हो रही है, 0 डिग्री सी की बात नहीं हो रही है। 0 केल्विन हेलो पे सर। यानी -273 डिग्री सी पे ये स्ट्रक्चर होगी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट यानी वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कंडक्शन बैंड खाली होगा और कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेंगे। इसके वजह से कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी कंडक्शन बैंड का मतलब है देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे ही सिचुएशन है जैसे इंसुलेटर की होती है। इंसुलेटर में क्या होता है, के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड फिल होता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बीच में गैप होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, यानी कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं शिफ्ट होते, माइग्रेट नहीं करते गैप की वजह से। वो चीज यहाँ भी हो रही है। इसलिए कहते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। तो कोई पूछे कि आपको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, तो आप कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। क्यों? कि वैलेंस बैंड फिल होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है, ड्यू टू -270 डिग्री टेम्परेचर all electrons are freezed in valence band and conduction bands are empty, ठीक है। यस सर। ये जवाब होगा। दूसरा केस हम लेते हैं एट रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर तकरीबन देखिए, रूम टेम्परेचर कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं कहीं 15 डिग्री लेते हैं, कहीं 20 डिग्री लेते हैं, कहीं 25 डिग्री लेते हैं। हमने 300 के अप्रोक्सीमेट लिया है, ये 25 डिग्री भी नहीं है, 27 डिग्री के आसपास है, डेट ये चलेगा। लेकिन तो देखिए रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो आपका सिलिकॉन मटेरियल है, सॉलिड है, उसको आप रूम टेम्परेचर पे -273 से कहाँ पे ले आए, 26 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री सी पे ले आए। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है दे विल एनर्जाइज एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम द हीट, और जैसे एनर्जी इसको मिलेगी ये अपने इतने इनके पास हाई एनर्जी हो जाएगी कि अपने पेरेंट एटम से निकल एस्केप करके ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। फिगर देखिए आप, ये देखिए बैंड की आखिरी ले ली है हमने, बैलेंस बैंड लिया है, कंडक्शन बैंड लिया है, दिख रहा है ना। यस सर। अब ये देखिए, ये इस वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो हीट एनर्जी सप्लाई करने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इतना एनर्जी मिल गया कि एनर्जी गैप को ओवरकम करके ये पहुंच गया कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये क्यों पहुंचा, चूंकि इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हिज पेरेंट एटम and reaches to conduction band. This is the heat energy, ठीक है। अब देखिए एक किस्सा एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ से निकल के जाता है वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वैकेंसी इसलिए क्रिएट हो जाती है कि ये यहाँ बॉन्ड डायग्राम में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था,
और ये यहाँ से निकल के फ्री हो गया, तो ये बॉन्ड की जो जगह थी दैट बिकम फ्री। इस वैकेंसी को कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसका नाम है होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो जब भी हीट सप्लाई करेंगे और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। इस इलेक्ट्रॉन लीविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड वैकेंसी क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। जब भी एक काम होगा ना, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, वो लिफ्ट करेगा तो नीचे अपना एक वैकेंसी छोड़ जाएगा। इन दोनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये कैसे हो रहा है? ये थर्मली जनरेटेड है, बाहर से हीट दे रहे हैं, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल के पेयर बनते हैं। तो ये देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे कंडक्शन बैंड में, उतने वैकेंसी हमारे पास वैलेंस बैंड में अवेलेबल होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेटेड टू कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, दोनों बराबर होंगी। अब देखिए, अगर हम इसको, तो इसको होल पेयर कहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से दोबारा वापस आ गया, किसी उसकी एनर्जी लूज हो गई एंड दे अगेन फॉल बैक टू कंडक्शन बैंड, तो इसी आके इस जो वैकेंसी छोड़ी थी उसमें जाके ये रिकॉम्बाइन हो जाएगा। तो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो माइग्रेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। और इन केस अगर कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आते हैं, तो ये कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है? यस सर। इसमें देखिए, अब दो बातें हुई, यानी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो दो चीजें होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री एंड मूव फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है? और जब फ्री हो जाते हैं तो ये पूरे क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्री इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। एक बात क्लियर है? यस सर। और फिर जिस एटम को ये इसको छोड़ के जाते हैं, जिस वैकेंसी को छोड़ के जाते हैं वैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन्स इंगेज रहते हैं बॉन्डिंग में, यहाँ देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, हमारा कर्सर पॉइंटर दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर गया, यहाँ वैकेंसी छोड़ गया। ठीक है? और बाकी इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल। ये किसी से अटैच नहीं है, फ्री है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, वो फ्री नहीं है, वो जहां जहां वहां नहीं जा सकते। बस वो इस वैलेंस बैंड, ये देखिए बैंड डायग्राम में, ये इतना कर सकते हैं कि वैलेंस बैंड में ही आपस में अगर एनर्जी थोड़ी बहुत मिल गई हीट के वजह से, तो इसमें मूव कर सकते हैं, ये वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। ये कंडक्शन बैंड वाला तो फ्री है, ये मूव करेगा पूरा। लेकिन वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑलरेडी इंगेज इन बॉन्डिंग, दे विल ओनली मूव इन द वैलेंस बैंड। क्लियर है बात? यस सर। जो कंडक्शन बैंड की वजह से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो करंट होगा, दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। दूसरी बात यह है कि जहां वैकेंसी ये उसने छोड़ दिया, नेक्स्ट डायग्राम में ज्यादा, ये देखिए, ये थोड़ा लंबा डायग्राम है, इसमें ज्यादा क्लियर है। ये यहाँ पे वैकेंसी हो गई। यस सर।
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। ये सारे चीजें जो है ना, ये वैलेंस बैंड की बात हो रही है, क्योंकि बॉन्ड जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो वैलेंस बैंड में आते हैं। ये वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन लीव करके कंडक्शन में चला गया, ठीक है। एक Yes. वैकेंसी यहाँ छोड़ दी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया। देखिए ये मूवमेंट दिखा रहा है, ये दुम जो दिखा रहा है, ये मुंह दिखा रहा है, ये दुम दिखा रहा है। तो वहां से यानी इधर को उसने माइग्रेट किया। ये पहला होल क्रिएट हुआ ड्यू टू हाई टेम्परेचर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस माइग्रेशन। तो ये खाली हो गया, इसको फिल करने के लिए बराबर से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करके रिकॉम्बाइन हो गए। अब यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, सेकेंड होल क्रिएट हो गया। इस सेकेंड होल को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, वहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे एक थर्ड होल क्रिएट हो गया। अब ये थर्ड होल को फिल करने के लिए ये थर्ड इलेक्ट्रॉन आया, फिर जहां से इलेक्ट्रॉन आया ये फुल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस सर, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ना। Yes, और sir. इसके उल्टा ये होल्स आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इधर को होल्स मूव कर रहा है। देखिए होल्स का मूवमेंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही होल्स बन रहे हैं। यस सर। तो यानी दो करंट होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। जब हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं या उस पे पोटेंशियल अप्लाई करें तो दो करंट होंगे। एक करंट होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा करंट होगा करंट ड्यू टू होल्स। तो देखिए अगर हम ये पीस ऑफ सिलिकॉन लिया, उस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड होल्स विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। होल्स को हम मानते हैं, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज है ही, तो ये Yes, sir. पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फाइनली जब करंट फ्लो होगा आउटर सर्किट में तो दो तरीके के होगा, एक होल करंट और एक इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट। तो ये फाइनल कंक्लूजन ये है, करंट इन अ सेमीकंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, free electrons moving in one direction and holes moving in opposite direction. The total current is actually the sum of two parts. ये बात हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब